A very good evening to all of you, and a warm welcome to all our viewers who have joined us on the show. Welcome to our YouTube channel, Skepta. I'm your host, Dr. Mani Iyer. Before we start, I request every one of you to please subscribe, like, and share this video podcast and channel with all your friends and relatives. So, without much ado, let's get into the topic. Um, all right, let's begin. Today, we will continue our series on child development, for which our topic will be ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder across the lifespan. In today's real world, uh, ADHD has been misunderstood and is being used very lightly. Everyone feels I am ADHD due to poor attention and focus. But to understand what really is ADHD and adult ADHD, the term now being famously used now on social media. So we have our speaker, Ms. Ekamjeet Kaur. She is a clinical psychologist and a psychotherapist, RCA registered, with experience in science, child psychology. She will be taking us forward to what ADHD really is and how it uncovers throughout our life. So, welcome to the show, Ms. Ekamjeet Ji. Over to you. Thank you so much for the warm welcome. And let's begin with the series and the next topic, that is ADHD across the lifespan. Thank you so much, Dr. Mani, for again hosting me on your YouTube channel. So let me share the screen with you. Yeah, is it visible? Yeah, it was. Okay. So our topic for the day is ADHD across the lifespan. We'll discuss how it turns from early childhood to adulthood, how the symptoms evolve, what's hide beneath it, and what's the research says about it. So this will be the roadmap. We will be discussing the clinical picture, the definition, what exactly it is, their presentations, and then across the lifespan, their assessment, treatment, and the takeaways. बिफोर स्टार्टिंग पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज एडीएचडी. एडीएचडी फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. So it's a neurodevelopmental disorder. When we say a neurodevelopmental disorder, as already we have discussed in our past series, it can begin at any time during the development phase, maybe at conception, birth or growth. ये कुछ ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि आपको आपके 25 years ऑफ द लाइफ के बाद या 30 years ऑफ द लाइफ के बाद हो जाएगा. जैसे सर ने बोला कि सोशल मीडिया पे भी बहुत मिसकंसेप्शन, बहुत लाइटली यूज हो रहा है डिसऑर्डर का नाम. सब कोई बोल रहा है कि मेरे को ओसीडी है या हमें एडीएचडी है, पर जो एडीएचडी वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. ऐसा नहीं है कि 30 years पे जाके मुझे एडीएचडी हो जाएगा. ऐसा हो सकता है कि इट वाज नॉट डायग्नोज्ड बिफोर, या फिर सिम्टम्स हैं वो अटेंशन डेफिसिट आ रहे हैं, दे आर ड्यू टू एनी अदर कॉज, मे बी लाइफ or any other. But if it's disorder, then the symptoms must appear before the age of 12. DSM-5 says that there are three core traits for the disorder, that is inattention, hyperactivity and impulsivity, and these symptoms must appear before the age of 12. और जैसे हमने पहले भी समझा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो चीजें हैं दे शुड बी अक्रॉस द सेटिंग्स. ऐसा नहीं है कि बच्चा बस घर पे नहीं आराम से बैठ रहा है, घर पे फोकस नहीं कर पा रहा पर स्कूल पे कर पा रहा है, देन इट विल नॉट बी अ डिसऑर्डर. जब बात डिसऑर्डर पे आती है वो 2 और मोर सेटिंग्स पे प्रेजेंट होना चाहिए कि जो उसकी फंक्शनिंग इम्पैक्ट कर रही है बच्चे की, वो घर पर भी कर रही है, स्कूल पर भी कर रही है, और जब वो कहीं काम पर जा रहा है बड़ा होकर वहां भी उसकी फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही है. अगर सिर्फ एक सेटिंग में है तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, या फिर वो दूसरी जगह बहुत अच्छा मास्क हो रही है, ये भी हो सकता है. बट हमें डिटेल्ड फिर उसकी रीजन आउट करने पता करने पड़ेंगे. अक्रॉस द सेटिंग्स मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए हमारे सिम्टम्स, और दे शुड बी परसिस्टेंट एट लीस्ट फॉर 6 months.
और जो ये डिफरेंसेस हम बात कर रहे हैं नॉन एडीएचडी ब्रेन और एडीएचडी ब्रेन में, दे आर द रियल डिफरेंसेस इन द ब्रेन डेवलपमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन। ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से मैं अटेंशन नहीं दे पा, मतलब मैं खुद से नहीं चाह रही हूँ कि मेरी अटेंशन ऐसे रेगुलेट ना हो पाए। दे आर द रियल डिफरेंसेस जो हमें समझने पड़ेंगे और वैसे ही हम रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड का टेक अवे इज दैट कि इट्स अ डिसऑर्डर, हम इसको लाइटली यूज ना करें, और इट हैज टू बी प्रेजेंट फॉर द एज ऑफ 12 ईयर्स। हो सकता है कि आप मिसडायग्नोस्ड हो जाओ या फिर अंडर डायग्नोज रह जाओ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम से 30 ईयर्स पे आके सिम्टम्स आ जाएंगे, राइट? Then the question is how common it is. By stats, by the studies, research shows that it is common. The prevalence rate is 5% worldwide in children and adolescents. In children and adolescents, the need criteria for ADHD is 5%, and when we talk about the adults, it is 2.5. अभी बहुत सारे adult ADHD के assessments हमारे पास आने लगी हैं with awareness, एंड द गर्ल टू बॉय रेशियो इज 2:1। अभी जो रेशियो है ये प्योरली रेट डिफरेंस नहीं है, इट इज मोरली impacted by the largely referral number and recognition bias. गर्ल्स में एडीएचडी ना बहुत ज्यादा अंडर डायग्नोज रहता है क्योंकि इनमें मास्किंग बहुत स्ट्रांग होती है, और जो सिम्टम प्रेजेंटेशन मैनिफेस्टेशन है ना, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। वी विल स्टडी दैट टू इन आवर फर्दर प्रेजेंटेशन, बट बाय स्टैट द रेशियो इज 2.1। पर इस रेशियो के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। The three clinical presentations when we talk about ADHD, इसमें हमारे 3 presentations बहुत important है as per the framework of DSM-5. Either the child can be predominantly inattentive, मतलब inattentive में उसको कैसे कैसे symptoms आएंगे, difficulty sustaining a task और focus, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसपे मेंटल एफर्ट लगेगा वहां पर आई एम नॉट एबल टू सस्टेन माई फोकस। फॉर एग्जाम्पल होमवर्क करना है, मैक्स टू मैक्स 5-10 मिनट के लिए आई एम एबल टू अटेंड, देन अगेन आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इधर कोई एक्सटर्नल नॉइस या फिर मेरे अपने ही थॉट्स या फिर कुछ भी किसी भी चीज से आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। देन फॉरगेटफुलनेस, जल्दी भूल जाना कि अपॉइंटमेंट्स रखी थी, ये चीज यहाँ रखी थी, मेरी कीज कहाँ गई, मैंने शूज आके यहीं तो उतारे थे, अब कहाँ चले गए। तो इसकी वजह से चीजें खो भी देना कि बच्चा रोज ही अपनी स्टेशनरी खो आ रहा है, रोज उसकी पेंसिल गुम हो जाती है, रोज अपनी वो बॉटल भूल जाता है स्कूल में, ऐसी ऐसी चीजें वो भूल जाता है। देन मिसिंग डिटेल्स, मे बी बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिला, वो बैक साइड देखना ही भूल गया और उसकी वजह से उसने पेपर अटेंड नहीं करा, ऐसे नहीं उसे आता नहीं था, पर डिटेल्स ही मिस कर देता वो चीजों को ध्यान से क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं। या फिर अगर मैथ्स का क्वेश्चन था, वो माइनस की बजाय हमने डिवीजन का साइन पढ़ लिया और सारा ही गलत कर लिया उसकी वजह से। तो वो केयरलेस मिस्टेक्स काफी होती हैं इन इनअटेंटिव टाइप में जो ओवरलुक हो जाती है। देन द सेकेंड टाइप इज हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इसमें आ जाता है रेस्टलेसनेस, जैसे आपने बहुत कॉमन बच्चों को सुना होगा, बच्चों की जो कंप्लेंट मेन हाइपर एक्टिविटी वालों की स्कूल से आती है, ये टिक के नहीं बैठता मैम, बैठता नहीं अच्छे से क्लास में, इधर उधर बस भागता रहता है, बैठता नहीं है अपनी एज के अकॉर्डिंग, या फिर बहुत ज्यादा बात करता है, बात ही करता रहता है, बहुत ज्यादा बात करता है, या बहुत इंटरप्ट करता है कि जैसे आप कोई बात बोल रहे हो बीच ही में इंटरप्ट करना, या फिर अपनी टर्न की वेट ही ना करना। अगर मैं आपसे कुछ सवाल मैंने आपसे पूछा है तो उस सवाल को कंप्लीट होने का टाइम ही नहीं देना, उससे पहले ही आंसर कर देना, दैट इज ब्लर्ट आउट आंसर, या पूरी इंस्ट्रक्शन सुनना ही नहीं। अगर मैं कुछ गेम भी प्ले कर रही हूँ तो मेरी 5th टर्न है, आई एम नॉट एबल टू वेट, मेरे को कुछ करना है कि जब तक मेरी 5th टर्न आएगी ना तब तक मैं ये प्ले कर रही हूँ, जब मेरी टर्न आएगी तब मुझे बुला लेना। पर जो ये वाली प्रेजेंटेशन है ना, ये काफी विजिबल होती है और यही मोस्ट रेफर्ड प्रेजेंटेशन है जो क्लिनिक्स में आती है, द हाइपर एक्टिविटी। इनअटेंशन वाली काफी अभी तो चलो विद अवेयरनेस वो आ रही है, बट अदरवाइज ये काफी मिस हो जाती है इनअटेंशन वाली। हाइपर एक्टिविटी वाली काफी विजिबल होती है तो वो मोस्ट रेफर्ड भी रहती है। देन द थर्ड इज कंबाइंड प्रेजेंटेशन, कि बच्चे को दोनों सिम्टम्स मीट कर रहे हैं, इनअटेंटिव के भी एंड हाइपर एक्टिविटी के भी, वो कंबाइंड प्रेजेंटेशन में आता है। So hope I'm clear with the presentations as in general we see in ADHD. Then if we talk about what is the brain behind ADHD, some structural way how it differs, then we have is prefrontal cortex and our executive function network. That is very important. When we say about planning, executing a task, making decision,
delaying gratification, everything controls our prefrontal cortex. उसमें से हमारी वर्किंग मेमोरी, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शंस। और एडीएचडी में ये सारी चीजें हम डेफिसिट देखते हैं। बीट कुछ चीजें प्लानिंग करनी, उनमें बहुत डेफिसिट होता है। फोकस और इम्पल्स कंट्रोल, ये भी हमारा प्रीफ्रंटल के एक स्पेसिफिक ब्रेन पार्ट का वर्क होता है। तो उसमें ये स्टडीज ने देखा कि इट्स लाइक कि वो उनकी जो मैच्योरेशन होती है, कोर्टिकल मैच्योरेशन इन एडीएचडी, वो थोड़ी डिलेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की 10.5 ईयर्स में डेवलप हो रही है, जो कि टिपिकल न्यूरोटिपिकल बच्चे की वो 7.5 ईयर्स में डेवलप हो जाएगी कॉर्टिकल मैच्योरेशन, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है अगेन कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, द चेंजेस आर रियल, वो उनके पीछे कॉर्टिकल मैच्योरेशन की वजह से वो चीजें होती है। और फिर दो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं जब हम एडीएचडी की बात करते हैं, दैट इज डोपामिन एंड नॉरपेनेफ्राइन। डोपामिन एंड नॉरपेनेफ्राइन हमें हेल्प करता है चीजों को इनिशिएट करने में, सस्टेन करने में हमारी अटेंशन, और हमें रिवॉर्ड फील कराने के लिए। अगर हमें कोई चीज एक्साइटिंग नहीं लगेगी, वो हम वहां पर एडीएचडी वाला बच्चा नहीं स्टार्ट करेगा, तभी बहुत दिक्कत आती है कोई भी बोरिंग काम इनिशिएट करने में। और द स्टडी शोज दैट कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो एक स्वीट स्पॉट में होने चाहिए, ना तो ज्यादा कम ना ज्यादा एक ऑप्टिमाइज कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत कम हो रहे हैं, मिनिमम एक गुड स्वीट स्पॉट में वो होने चाहिए एज पर द स्टडीज। And then ADHD has a strong genetic loading also. At least researchers shows that at least 70 to 80% in twins, it has estimated the heritability, and in family studies. So it's not a damage, it's a developmental lag, which we have talked about, the cortical maturation delay. So this is the main brain behind the ADHD. We can just memorize the two neurotransmitters, that is dopamine and norepinephrine, that are responsible for initiating things and sustaining things and making them feel pleasurable and rewardable. And then the brain structure, that is prefrontal cortex. These three things are important to remember when we talk about brain behind the ADHD. A question, Jay. Yes. Small question. You can go back to the previous slide. Genetic loading means what you mean is this can be inherited. Is it an inherited kind of a thing, or? Yes. कि अगर any child के sibling को they had ADHD, so there is a high probability that second sibling may also have ADHD. If mother or father has ADHD, there is 70 to 80% probability that the child will also have the ADHD. इसमें ना ऐसा नहीं कि पक्का होगा कि अगर मदर या फादर को ADHD है तो पक्का होगा। जो हेरिटेबिलिटी है वो उसको और स्ट्रॉन्गर कर देती है। कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग अ कैजुअल एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि अगर दो बच्चे हैं, एक में जेनेटिक लोडिंग नहीं है, जेनेटिक की कोई हिस्ट्री नहीं है फॉर द डिसऑर्डर, और दूसरे बच्चे में है, तो जो जिस बच्चे में जेनेटिक है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एडीएचडी इज मच स्ट्रॉन्गर देन द सेकंड चाइल्ड। सो अगर फैमिली में एडीएचडी रन कर रहा है, डजंट मीन कि हमेशा बच्चे को होगा ही होगा, पर उसकी जो पॉसिबिलिटी है टू इनहेरिट, टू हेरिटेबल हैव दैट एडीएचडी इज हायर देन द अदर चाइल्ड। Okay. The risk Thank will, you. we can just understand that the risk will be higher. Thank you. Then the same condition but in different stages. अब इसमें क्या होता है कि हमें बहुत कॉमन ना क्वेश्चन आता है कि जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे एडीएचडी ठीक हो जाता है। एडीएचडी की ना मैनिफेस्टेशंस चेंज होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, और वो हम आज डिस्कस करेंगे कि इट्स नॉट लाइक कि एडीएचडी ऐसे ठीक हो जाता है, इट्स लाइक कि उसकी मैनिफेस्टेशंस बदल जाती है। जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें ज्यादातर केसेस इसी में आते हैं, स्पेसिफिकली मेल केसेस अर्ली चाइल्डहुड में हमारे पास आते हैं। और किस सिम्टम्स में आते हैं? सबसे ज्यादा जो आइडेंटिफाइबल सिम्टम है जिसके लिए स्कूल टीचर्स, प्लेवे टीचर्स हमें रेफरेंस भेजती हैं, दैट इज कांस्टेंट मोटर एक्टिविटी। बच्चा अपनी उम्र, ऑब्वियसली अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें एज के लिए नॉर्मल होती हैं। छोटा बच्चा एक्सप्लोर करता ही है, जैसे हम बैठे हैं वैसे नहीं बैठता, बच्चा भागता रहता है इधर उधर। पर द टीचर्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेफरल, क्योंकि उनके पास 20 बच्चे साथ इकट्ठे बैठे होते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई इट वेरी नाइसली, क्योंकि ये दो बच्चों को ज्यादा परेशानी आ रही है आराम से बैठने में।
मे बी he'll or she'll just climb, रन इधर उधर, हर एक चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, हर एक चीज को देखना है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ पा रहा है, अगर खाना खिलाना भी इनको टास्क लग रहा है, मील टाइम भी, कि कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग चाहिए, नहीं मील टाइम भी पूरी नहीं हो पाएगी, खाना खाते ही बच्चा भागता रहेगा, मतलब कुछ भी आराम से नहीं कर सकता बच्चा बैठ के। मोटर एक्टिविटी बहुत ड्रिवन होती है, सबसे ज्यादा रेफरेंस इसी की वजह से आते हैं। देन द इमोशनल रिएक्शंस, इतना ज्यादा मेल्ट डाउन फील करना डिस्प्रपोर्शनेट टू द ट्रिगर। बस हुआ ये था कि बस कोई बहुत छोटी सी बात, बट उसका जो इमोशनल रिएक्शन है वो बिल्कुल ही डिस्प्रपोर्शनेट, बहुत इंटेंस। देन बच्चे को रूटीन्स और ट्रांजिशंस में दिक्कत आ रही है कि कितने बजे निकलना है, कितने बजे आना है, गेटिंग ड्रेस के लिए। वैसे ही इस उम्र में ज्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि पेरेंट्स ही इंडिया में इस उम्र तक सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड करके रखते हैं उनके लिए, तो वो पता नहीं लगता, आइडेंटिफाइबल नहीं हो पाता कि वो बच्चे की डेफिसिट है। पेरेंट्स ज्यादातर अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, क्योंकि इंडिया में फिर भी हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने बच्चे की, तो वो ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। देन एज वी हैव ऑलरेडी टॉक की थोड़ा हाई क्वेश्चन भी हमें लेना पड़ेगा कि सम टाइप ऑफ एक्टिविटी इज वेरी नॉर्मल एट दिस एज। देन अगेन वी हैव डिस्कस कि पेरेंट्स आर द मेन रेफरल्स, वो सबसे अच्छा इस उम्र पे पहचान पाते हैं। देन कम्स द स्कूल एज, अब बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है थोड़ी थोड़ी। अब वो थोड़ा थोड़ा अपने पेरेंट्स से दूर रहना स्टार्ट करता है, उसकी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती हैं, वो फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ी थोड़ी और चीजें क्लियर आउट होने लग जाती है, मैनिफेस्टेशंस आने लग जाती है विद एज। सबसे पहले आती है अब अकेडमिक डिमांड्स बढ़ जाती है बच्चे के लिए। अब उसको थोड़ी देर के लिए बैठना भी पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए अटेंशन भी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो स्टार्ट हो जाती है 12 एज पे, उसका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए वर्किंग मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग मेमोरी इंपॉर्टेंट है, और वर्किंग मेमोरी में ही बहुत ज्यादा डेफिसिट होता है एडीएचडी में। तो हम यहाँ पर अब टीचर्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देती हैं कि बच्चे को आता तो है, पर वो एक छोटी सी मिस्टेक करके सारा काम गलत कर देता है। बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो है, पर वो क्योंकि ध्यान नहीं लगाता, तो इतने ज्यादा स्कोर्स नहीं अचीव कर पाता। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कूल से रेफरल्स आते हैं, और यहाँ पीयर रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से नहीं हो रही वेट टर्निंग, और 6 to 12 तो एक एज है जब हाँ बहुत फ्रेंड्स बनते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं अपना फ्रेंड पीयर रिलेशनशिप, तो वहां पर बच्चे भी हमारी ही उम्र के हैं और हम भी वैसे हैं, तो वो भी नहीं इतना अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये बच्चा क्यों नहीं वेट कर पा रहा अपनी टर्न्स। वो भी नाराज हो जाएंगे कि आप मेरे को इंटरप्ट करते रहते हो, मेरी टर्न ही लेते रहते। तो उसकी वजह से सिर्फ अकेडमिक नहीं, अब रिलेशनशिप्स पे भी स्ट्रेन पड़ने लग गया, क्योंकि बाकी बच्चों को भी इतना नहीं अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज द कॉज, वो अपना लेके चलेंगे कि आप क्यों नहीं वेट करने दे रहे हो। तो दैट इज द वाई। और यहीं पर आके सेल्फ एस्टीम एक हिट करने लग जाती है कि अब मैं थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी जब मेरी बन रही है, और साथ ही मेरे को टीचर्स बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीछे नहीं, आगे आके बैठो, कॉल आउट करी जा रहे हैं बार बार, तो वो सेल्फ एस्टीम की भी ये बहुत क्रूशियल एज होती है, तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी हिट करनी स्टार्ट कर देती है। दिस इज द स्टेज जहां पर पहली बार एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग बच्चे से डिमांड करी जाती है, और वहां पर दिखता है कि नहीं, बच्चे को डेफिसिट हो रहा है इस एक्टिविटी में। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, एडोलेसेंस में जाता है। अब यहाँ पर जो अवर्ट हाइपर एक्टिविटी है ना, जो इधर उधर भागना कंटिन्यूसली, वो थोड़ी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो इनर रेस्टलेसनेस से स्टार्ट हो जाती है। अब एक्सटर्नल रेस्टलेसनेस थी कि भागी जाना, इधर उधर सब कुछ एक्सप्लोर करना। इनर वाली होगी कि थॉट्स ही इतने तेजी से भाग रहे हैं कि मैं अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने थॉट्स से ही डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ। या फिर फिजिटिंग, आपने देखा हो ना कि कुछ ऐसे बच्चे बार बार टैप टैप करते रहते हैं, अपने लेग्स को शेक करते रहते हैं, फिजिट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ उनको करना है एनी टाइम। या कोई और कुछ चीज साथ में आपसे बात करें, कुछ और चीज के साथ कुछ ना कुछ फिजिट करते रहना है। तो ये सारी चीजों से रिप्लेस होने स्टार्ट हो जाती है हाइपर एक्टिविटी। एक्सटर्नल वाली भागदौड़ वाली थोड़ी कम शांत होनी स्टार्ट हो जाती है, और इनर रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। या फिर लड़कियों में बहुत ज्यादा बातचीत करना, कि बहुत टॉकेटिव हो आप, बहुत बात करती हो, वो सारी रेस्टलेसनेस ऐसे निकलती है कि एक ही एक्टिविटी बहुत ज्यादा ही बात कर रहे हो आप।
देन डिसऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर अब चीजें बढ़ गई हैं, बच्चे को ट्यूशंस भी जाना है, को करिकुलम एक्टिविटीज भी देखनी है, पर उन सब में कैसे टाइम मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अपनी कैसे सारी नोटबुक्स एज पर द सब्जेक्ट्स कैसे सारी रखनी है, इसमें इसके बोर्ड्स के पेपर भी देने हैं, उनको नोट्स बनाने हैं, ये सब करने हैं, कितना टाइम मेरे को मैनेज करना अपने ट्यूशंस के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए, वो सारी मुश्किल हो जाती है। और मेन इसकी टास्क इनिशिएट, वो ही टास्क इनिशिएट करना इतना भारी लगता है कि बच्चा स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, और फिर एंड मोमेंट वो सारी चीजें करता है। रिस्क टेकिंग इस एज में, जो वैसे भी दिस एज इज फॉर द रिस्क टेकिंग, और ड्यू टू द इम्पल्सिविटी ऑफ दैट एडीएचडी जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू अडोलेसेंट, एडोलेसेंट इज द एज वेयर जहाँ रिस्क टेकिंग ज्यादा होती है, पर अगर एडीएचडी की इम्पल्सिविटी भी है, वो अगेन मेरे रिस्क को हाई कर देगी टू ट्राई थिंग्स, मे बी कि ज्यादा हैश ड्राइव करना, सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना, देन वो आउट ऑफ इम्पल्सिविटी आ रही है। कुछ बहुत अच्छे से मास्क भी हो जाते हैं सिम्टम्स अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जैसे कि मैं ज्यादा ओवर कंपनसेट करूं, या परफेक्शनिज्म, कि अगर पता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ रही है, टाइम मैनेजमेंट में, मैं इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लान ही बनाई जा रही हूँ अपने लिए, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा प्लान बना रही हूँ, या फिर मैं किसी और की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अपने ऊपर कॉपी कर रही हूँ, तो दैट वेज। एंड मूड एंड सेल्फ वर्थ तो इस एज में भी, क्योंकि बहुत क्रिशियल एज है, पुबर्टी की एज है, हार्मोनल चेंजेस करके ही जो हमारी एक वो थ्रेशोल्ड होती है ना, वो ऑलरेडी एक उस लिमिट पे है, एंड देन अगेन एडिंग अ डिसऑर्डर टू इट, इट विल एड अ मोर टोल ऑन द मूड एंड द सेल्फ वर्थ। कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ फिर भी द मतलब बच्चे को चाहिए कि उसके भी ग्रेड्स आए, वो भी क्लास में एक्सेल करे, बट वो समझ ही नहीं पाता कि क्यों नहीं हो पा रहा है। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड बट स्टिल बाय मैं क्यों नहीं वो रिजल्ट शो अप कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। Then One question, ma'am. yes. So we talked about the childhood stage, and then we talked about, now we are talking about the adolescent stage. So now, if we just go back to the childhood, if the person is identified, the child is identified to have something positive for ADHD. Now, can he? I mean, he can get into therapy, and in a way, this can be reduced, or how? What is the kind of, if it is early identification? So, what kind of benefits? I mean, in the sense that if he reaches to a child psychologist or something and get some therapy, so is it possible to avoid them when it comes to adolescent or further years? It can reduce the impact, or even. Definitely. Early intervention though works for every neurodevelopmental disorder. I have a slide for the management itself, but I'll answer it here also. When the child is identified in ADHD, medications also work very well. Medications work very well. We can refer a child to a child psychiatrist. They can start with medications for the ADHD. Then we can start the non-pharmacological management for the ADHD also, क्योंकि ब्रेन तो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, अब ब्रेन के पास कैपेसिटी है चीजें सीखने की, तो जो डेफिसिट्स हैं, दैट इज वर्किंग मेमोरी के डेफिसिट्स हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में जो डेफिसिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रहा है, या अटेंशन है, पहले तो हम असेसमेंट करते हैं कि किस लेवल पे अटेंशन डेफिसिट है, कितना डेफिसिट है, उसके बाद हम स्पेसिफिक अटेंशन बेस्ड उसको एक्टिविटीज प्रैक्टिस कराते हैं बार बार। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज ऐप ऑल्सो दैट इज ब्रेन फंक्शन थेरेपी, उसमें डिफरेंट डोमेन्स की सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो रेपिटेटिवली हमें प्रैक्टिस करनी होती है हमारी वर्किंग मेमोरी के लिए, परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, बार बार। सो उस लर्निंग को जब वो कंसोलिडेट होता है इन द ब्रेन, उस लर्निंग को हम रियल लाइफ में ऐड कर सकें, कि जैसे अगर मैं अटेंशन एक्टिविटीज करा रही हूँ बच्चे को इन द सेशन थ्रू एनी ऐप, थ्रू एनी पेपर पेन एक्सरसाइजेस, उसके बाद अब उसको कैसे यूज करनी है इन द इन्वायरमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेजर करा कि बच्चे की अटेंशन स्पैन इज 10 मिनट्स, तो उसकी इन्वायरमेंटल, चलो मेडिकेशंस तो साइकियाट्रिस्ट चलाएंगे, फिर हम उनके पेरेंट्स को इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन भी सिखाएंगे कि बच्चे को आपको ऐसी टेबल देना, ऐसा डेस्क देना जहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस थोड़ी कम हो, डिस्ट्रैक्शंस कम हो, और उसके टेबल पे फिर सिर्फ जो काम कर रहा है उसके रिलेटेड ही टास्क हो,
क्योंकि ऑलरेडी बच्चा इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो बाकी चीजें और हमें स्ट्रगलिंग नहीं बनानी, उसके लिए इन द स्टार्टिंग फेज। तो अगर 10 मिनट्स उसका अटेंशन स्पैन है, देन आई विल मेक अ पोमोडोरो फॉर द 10 मिनट्स ओनली। ऐसा नहीं मैं 25 मिनट्स के सेट ऑफ पोमोडोरो बनाऊंगी, वी कैन चेंज पोमोडोरो एज पर हिज अटेंशन स्पैन और हर। तो 10 मिनट का पोमोडोरो, 10 मिनट उसने टास्क किया, देन उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए। दैट ब्रेक, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर उस ब्रेक में ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने और मेंटल एफर्ट वाला कर दिया या फिर कुछ ऐसा प्ले कर लिया जिसमें से फिर पता ही नहीं लगा कि कहाँ हमारा टाइम चलेगा। फिजिकल मूवमेंट वाला आई ऑलवेज सजेस्ट कि फिर 5 मिनट जाके गो have water, do some physical stretching activity, do something like that, so that again we can feel thoda fresh and stay from out of that dopamine activities, and then again set for the 10 minutes, again break, again set. So इस वे से हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स काम करते हैं बच्चे के और पेरेंट्स के साथ, जो घर पे भी सिखाते हैं और जो सेशंस में भी अटेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेस उनको कराते हैं। और फिर मोमेंट हम उनको, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको सिखाते हैं ये चीजें कि कैसे ब्रेन आपका वर्क करता है, आपने कैसे मैनेज करनी है। क्योंकि ब्रेन बहुत तेजी से सीख रहा है, तो वो सीखना स्टार्ट हो जाते हैं कि दिस इज हाउ आई हैव टू मैनेज माय अटेंशन, एंड बाय रेपिटेटिवली प्रैक्टिसिंग द अटेंशन एक्सरसाइजेस देयर अटेंशन विल इंप्रूव। Thank you, ma'am. सो लास्टली इन अडल्टहुड, ADHD जैसे अडल्ट आजकल सोशल मीडिया पे बहुत फेमस टर्म है अडल्ट ADHD, और ये लगता है कि अडल्ट ADHD का मतलब कि अडल्टहुड में हमने एक्वायर करा है। सो इसका करेक्ट फ्रेमिंग वुड बी ADHD इन अडल्ट्स। जैसे मैंने बताया कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इफ द डिसऑर्डर इज देयर इट हैज टू बी प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ 12 ईयर। तो जब असेसमेंट के लिए हमारे पास अडल्ट आते हैं फॉर द ADHD असेसमेंट, तो उसका बहुत कोर रहता है कि हम इन्फॉर्मेंट से भी रिपोर्टिंग लेते हैं। वैसे तो अडल्ट काफी अच्छे से अपने सिम्टम्स को बता पाते हैं, बट ऑब्वियसली इतनी मेमोरी नहीं रहती फॉर द चाइल्डहुड थिंग। तो हम उनकी किसी पेरेंट्स से या जो भी उनका गार्डियन था कि जिन्होंने टेक केयर करा उनका, या कोई अच्छी मतलब अच्छी इन द सेंस कि कंसिस्टेंट टीचर और मेंटर जिन्होंने बच्चे को देखा होगा, सो दे कैन डू द असेसमेंट पार्ट कि बिफोर 12 इयर्स हाउ वाज हिज स्टेटस। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि ये चीज सिम्टम थी, ये चीज ADHD का था। तो साइको एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहेंगे हर ही बच्चे भागते रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो ADHD का पहले उनको समझाना और कैसे कि ट्रीटमेंट अब उनको हेल्प कर सकता है, वो थोड़ा साइको एडुकेट करना। नहीं, वो बहुत अंडर रिपोर्टिंग करते हैं पेरेंट्स। वो सारी चीजें केस टू केस बहुत डिपेंड करती है। बट जो मेन ADHD में हम सिम्टम्स देखते हैं, जैसे सेम इन द एडोलेसेंस, कि अब इसमें अवर्ट हाइपर एक्टिविटी तो कम होगी, पर जो चीजें हैं वो इम्पेयर करती रहती है अडल्टहुड में भी। मोर ऑफ इंटरनल रेस्टलेसनेस आ जाती है। अब काम पे, अब अडल्टहुड में अब काम पे जाना, जॉब पे जाना, वहां पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने, हायर स्टडीज करनी है, तो वहां पर बहुत मुश्किल आनी स्टार्ट हो जाती है। इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत बढ़ जाता है, ओवरवेलम। अगर पूरा दिन मैं अपने आप को मास्क भी कर रही हूँ अपने वर्क प्लेस पे, ओके आई एम मैनेजिंग द थिंग्स, पर फिर इतना ओवरवेलमिंग हो जाती है ब्रेन के लिए, क्योंकि मेरे ब्रेन को इफ आई हैड ADHD तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स चाहिए। दिस इज हाउ माई ब्रेन विल वर्क एट माई बेस्ट पोटेंशियल। बट उस पर तो इंक्लूजन ही नहीं है वर्क पे कि नहीं, ADHD ब्रेन के लिए कोई इंक्लूजन नहीं है उस पर, तो आई हैव टू सिट फॉर 3 आवर्स नो मैटर वट। पर उतनी प्रोडक्टिविटी फिर मुझे फील भी नहीं हो रही, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर वर्क प्लेसेस पे, स्कूल्स पे। उसकी वजह से एक टूट बहुत आ जाता है इमोशनल डिसरेगुलेशन पे। फिर वो सारा इधर आके या घर पर निकलता है अपने लव्ड वंस में कहीं भी, और उसकी वजह से अगेन गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो वो ओवरवेलमिंग वाली स्टेज हो जाती है आउट ऑफ द सिम्टम्स। देन क्रोनिक लेटनेस या टाइम ब्लाइंडनेस, पैसेज ऑफ टाइम का ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, और इनिशिएटिंग टास्क, मेरे को पता है कि ये चीज मुझे कंप्लीट करनी है, स्टार्ट करनी है, पर हो नहीं पा रही है। जब वो डेडलाइन आएगी ना फिर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कल एग्जाम है, तो कल परसों रात मैंने सारा बैठ के एग्जाम पढ़ना है, मेरे को पता है कि 10 दिन की छुट्टी मिली है, पर पहले आई नॉट इनिशिएट टास्क। वाई? क्योंकि वो हिट नहीं मिल रहा, ब्रेन को एक्साइट नहीं कर रहा। जब वो डेडलाइन आती है, वो प्रेशर अब बिल्ड होता है ना, वो ब्रेन को एक्साइटमेंट लगती है, फिर मेरी अटेंशन रेगुलेट हो पाती है। तो बोरिंग टास्क पे मेरी अटेंशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, तो इनिशिएट करने में बहुत स्ट्रगल लगता है। या फिर बस ये सोचना अब इतना सिलेबस करना पड़ेगा, अब इतनी देर बैठना पड़ेगा, इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो सोच के ही ब्रेन इतना ओवरवेल्म फील कर लेता है कि हम टास्क को इनिशिएट ही नहीं कर पाते।
फाइनेंशियल डिसऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पता ही नहीं लग रहा है कौन से बैंक में कहाँ कितने पैसे डाले थे, कैश इधर ही रखना था वहाँ कहाँ चला गया, सब्सक्रिप्शन ली थी वो कैंसल करना ही भूल गए तो पैसे कट ही जा रहे हैं। रेंट या कुछ भी इस मोमेंट तक पे करना था पर नहीं कर पाए, भूल गए अपॉइंटमेंट्स, तो उसकी वजह से ज़्यादा अब पे करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। तो ये सारी लेवल ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन भी आती है कि सिंपल टू डू लिस्ट बनाने की कब किसका कैसे पैसे निकालने, इतने बेसिक किसको कैसे जाएंगे, खुद के लिए कैसे सेव होंगे, कि ये भी एक टास्क लगने लग जाती है। तो एक जैसे हमने बात करी कि जो अडल्ट एडीएचडी के एडीएचडी विद अडल्ट्स जो आगे रिपोर्ट यही करते हैं कि हमेशा उनको थ्रू आउट द लाइफ में एक अंडर अचीवमेंट जैसा फील हुआ है। उनको हमेशा लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता था पर नहीं कर पाया, किसकी वजह से, चीजों की वजह से। देन द जेंडर एंड मास्किंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन। जो गर्ल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स नॉट ऑलवेज, बट गर्ल्स विद एडीएचडी ज्यादातर वो प्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विद इनअटेंटिव पैटर्न। या तो अपनी दुनिया में खोए रहना, डे ड्रीम करते रहना, ऐसे चुप करके बैठे रहना, या फिर अगर हम मीटिंग में बैठे हैं तो चीजें एकदम से मिस कर देनी, जोन आउट हो जाना और फिर से पूछना सॉरी प्लीज रिपीट आपने क्या बोला, क्योंकि अपने रेसिंग थॉट्स में इतना ज्यादा हम बिजी हैं। तो वो सारी चीजें काफी देखी जाती हैं गर्ल्स देन द बॉयज। और या फिर वो कैमोफ्लेज में बहुत इजीली हो जाती है कि मैंने बहुत अच्छे से परफेक्शनिज्म सीख ली, ओवर प्रिपेयरिंग करना सीख लिया, कि अगर मेरे को पता है कि ये चीज मुझे डेफिसिट लगती है, अपनी डिसफंक्शनल लगती है, तो उसको मैं ओवर प्रिपेयर करना मैंने स्टार्ट कर दिया है कि अगर मैं डेडलाइंस भूल ना जाऊं तो मैंने 4 जगह लिख दिया, 4 लोगों को बता दिया, उसके लिए ओवर प्रिपेयरिंग चीजें स्टार्ट करने लग गई। तो वो चीज भी कई बार मास्क आउट कर जाती है कि हम उस पर एफर्ट्स इतने लगा रहे हैं चीज पे, तो वो पता ही नहीं लग रही कि वो चीज एक डेफिसिट का कारण है, वो आपका कारण नहीं है। पर कई बार हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं कि मेरी गलती है, मैं ऐसा इंसान हूँ, बाकी लोग तो कर पा रहे हैं, तो वो साथ में और सिम्टम्स को एडअप कर देती है, मे बी एंजाइटी को, लो सेल्फ वर्थ को, डिप्रेसिव सिम्टम को, वो सारी चीजें एडअप होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि जो हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब बाकी चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसकी पर एक एफिकेसी देखी गई है इन अटेंशन रेगुलेशन। वो इन जब हार्मोनल शिफ्ट्स आते हैं, मे बी इन द पुबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पोस्टपार्टम एंड पेरीमेनोपॉज, उसमें शिफ्ट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से वर्सन हो जाते हैं एडीएचडी के सिम्टम्स ड्यूरिंग दीज फेजेस, जब भी हार्मोनल शिफ्ट्स होता है। क्योंकि why? Because of the hormone that plays a very good role in the attention and sustenance. Then some of the compensatory strategies. ज्यादातर क्या क्या हम करते हैं जब तक एक अडल्ट विद एडीएचडी जब तक एक क्लिनिक में आता है किसी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, ये सारी चीजें वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका होता है अडल्टहुड तक। और ये सारी चीजें कुछ लेवल तक बहुत अच्छा प्रूव भी करते हैं, अच्छी हेल्प भी देती हैं, जैसे कि अटेंशनल डिफिकल्टीज के लिए। फॉर दैट कि पहले ही अपने स्ट्रक्चर को, मेरी वर्क एनवायरनमेंट को मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर लिया, जैसे हमने बच्चे के केस में बोला था। सेम इन द अडल्टहुड, अगर मुझे पता है कि मुझे चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, तो मैंने सारा एक्सटर्नल स्टिमुलस ही बंद कर दिया। फोन पे एक नोटिफिकेशन, आई वॉज डूइंग माई वर्क, अच्छे से हम वर्क कर रहे थे, पर अगर कोई एक नोटिफिकेशन आई, गलती से इंस्टाग्राम खुल गया, गलती से कोई वो नोटिफिकेशन खुल गई, और वो सारी डिसरेगुलेशन, अब इंटेंशन तो देखो हमारी भी डाइवर्ट करती है, पर द थिंग इज कि कितनी जल्दी हम उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं। रेगुलेशन में मेन प्रॉब्लम होता है कि एक बार ही हम डिस्ट्रैक्ट हुए, कितनी बेटर हम उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, दैट इज द थिंग। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? या तो रिस्ट्रिक्ट ही कर दो, इधर आइसोलेटेड रूम्स में काम करो, या फिर आपने बहुत देखा होगा कि दे प्रेफर टू वर्क एट नाइट, रात को काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेचुरली फ्यूर डिस्ट्रैक्शंस होती है, एनवायरनमेंट भी बाय डिफॉल्ट सब नॉइज फ्री हो जाता है, ज्यादा फोन भी नहीं बजते हैं, ज्यादा कुछ काम भी नहीं होता है, हलचल भी नहीं होती है, तो बहुत शांत एनवायरनमेंट होता है। तो बहुत सारे लोग तभी ऑप्ट करते हैं रात को पढ़ाई करनी या रात को अपना काम कंप्लीट करना। तो दिस इज ऑल कि जो हम इन्वायरमेंटली चीजें चेंज कर रहे हैं अपने साथ मैनेजमेंट के लिए, अपनी अटेंशनल डिफिकल्टीज के लिए, इन्वायरमेंटली हमने ये सब किया। देन
मोटर डेफिसिट्स ऑफ रेस्टलेसनेस, अगर बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील हो रही है, फिजिटिंग बहुत ज्यादा फील होती है कि बहुत ऐसा लगता है कि बस भाग जाना है या फिर कुछ ऐसा बहुत तेजी महसूस हो रही है अंदर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी इन एनी फॉर्म। कि जैसे मैंने आपको बताया कि वी प्रेफर टू गिव द फिजिकल मूवमेंट ब्रेक, कि बीच में ब्रेक का मतलब ये नहीं कि बच्चे को आईपैड दे दो, बच्चे को फोन दे दो, नहीं, उसको थोड़ा फिजिकल मूवमेंट में एंगेज करो। और अडल्ट तक भी वो कंपनसेटरी सीख जाते हैं कि मेरे लिए क्या वर्क करता है विद द टाइम। अगर उनको कोई सिखाता नहीं, बहुत सारी चीजें वो अपने आप से सीख जाते हैं कि लास्ट टाइम ना जब मैंने एक्सरसाइज करी थी, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, मुझे थोड़ा सही लगा मेरी अटेंशन में। सो वो एक अपना रूटीन बना लेते हैं कि मेरे लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो तब थोड़ा अटेंटिव रह पाता हूँ। वो फिर उनकी एक हैबिट बन जाती है, गुड हैबिट। बट इट वेरी मच वर्क्स वेल ऑल्सो साइंटिफिकली ऑल्सो, कि थोड़ा एक्सरसाइज करना, फिजिकल मूवमेंट देना अपनी बॉडी को बिफोर डूइंग एनी अटेंशन बेस्ड वर्क, थोड़ी मूवमेंट देना। एंड देन ब्रेक्स लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ना देखो ब्रेन के साथ लड़ना नहीं है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि मेरे को इतनी शेड्यूल ब्रेक्स चाहिए, उससे मेरी उसका कोई फायदा नहीं है अगर मैं 3 घंटे बस बैठ रही हूँ, मेरी अटेंशन ड्रॉप होगी 45 मिनट्स में। बट नहीं, क्योंकि मेरे को 3 घंटे बैठना है, बाकी के 2 घंटे में स्ट्रगल करी जा रही हूँ, मेरी अटेंशन नहीं लग रही, अटेंशन क्यों नहीं लग रही, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ और देख लो 3 घंटे वेस्ट हो गए, कुछ हो भी नहीं पाया। नॉट वर्दी। अगर पता है कि अब मेरी अटेंशन बहुत डिवर्ट हो रही है, I'll take a 5-7 minutes break. I'll have some water, hydrate myself, will do a little stretching, and then again maybe rejoin the work. So that at least वो गिल्ट तो नहीं आया ना मैं 3 घंटे बस बैठा हूँ। वो जो मेरे ब्रेन को चाहिए ब्रेक, वो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, इतना इंक्लूजन उनको अपने लिए एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। That can lead to more efficient work, more productive work, and a work environment where they are allowed to fidget. There are some spinners, fidgeting toys also, they can use that. Fidgeting toys works very well when we talk about restlessness. So वो जो सारी रेस्टलेसनेस है वो वहां पर कम वो हो सके, रीडायरेक्ट हो सके। बट समटाइम व्हेन इनअटेंशन के सिम्टम्स भी होते हैं तो फिजिटिंग टॉयज कैन ऑल्सो बिकम अ बैरियर। अब वो ही मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन की वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आई एम सो बिजी इन फिजिटिंग द टॉयज ओनली दैट आई एम नॉट एबल टू गिव अटेंशन टू माई टास्क। सो वो सब कुछ हमें प्रैक्टिस कर करके समझ के ही समझ आता है, केस टू केस डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर एक केस के साथ इट वर्क फिजिटिंग टॉयज तो सबको ही बस फिजिटिंग टॉयज दे दो एडीएचडी में, नहीं। सबका क्लिनिकल सिम्टम्स डिफरेंटली वर्क करते हैं कि उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा सबसे ज्यादा। देन फार्माकोलॉजिकल कंपनसेशन बहुत ज़्यादा लोग स्टार्ट कर देते हैं खुद से, बहुत कॉफ़ी बार-बार पीना, एक्सेसिव कैफ़ीन पे रहना, कैनबिस स्टार्ट करनी, टोबैको स्टार्ट करना, सो दैट कि मेरी अटेंशन बनी रहे। बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकती है कि पूरा दिन मैं कॉफ़ी पे ही रह रहा हूँ अपनी अटेंशन के लिए, स्टिमुलेंट्स जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड हैं उन पे ही रह रहा हूँ, जो डोज उतनी प्रिस्क्राइब भी नहीं है बाय साइकेट्रिस्ट, अपने आप से अपनी डोज चेंज करके, अपने आप से इधर उधर से सुन के खुद ही मेडिकेशन स्टार्ट कर लेना। सो दैट कैन हैज अ लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस इन बैड वे। देन देयर आर सम सेकेंडरी सिम्टम्स जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं एडीएचडी। जो तीन तो हमने समझे, द थर्ड वन वाज कंबाइंड टाइप, and the one was inattention and second was hyperactivity and impulsivity. Apart from these are the secondary symptoms जो ADHD में काफी देखने को मिलते हैं। The very first is hyper focus। अब हम बात करें कि अटेंशन नहीं लग पाती, बट एक हाइपर फोकस का भी कॉन्सेप्ट होता है। दैट इज कि जिस काम में उनका इंटरेस्ट है ना, उनको करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिस काम में इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली, मे बी वीडियो गेम या फिर कोई एक टॉपिक के बारे पढ़ना, या फिर किसी भी काम में जिस काम में इंटरेस्ट है, उसको वो 3-4 घंटे के लिए आराम से कर सकते हैं, जिनसे उनको इंटेंस सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बाय अगेन ब्रेन वर्क, क्योंकि वो चीज उनको एक्साइटिंग लग रही है, तो वो टास्क इनिशिएशन में भी दिक्कत नहीं हो रही और टास्क सस्टेन करने में भी मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि इंटेंस इंटरेस्ट का वो हमारे लिए टॉपिक है या कोई एक्टिविटी है। पर उसे दिक्कत क्या होती है कि हम फिर इंटरफेयर कर देते हैं बाकी टास्क। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उनको बहुत, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि दो चीजें हैं कि पहले उनको अपना स्कूल वर्क कंप्लीट करना है, बट दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट रिलेटेड टू देयर ब्रांड। उनको उनके रिलेटेड एक आइडिया आ गया,
बट द थिंग इज कि अभी जो डेडलाइन है वो स्कूल वर्क की है, पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रायोरिटी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्किंग ऑन द ब्रांड थिंग, बट अ प्रायोरिटी थिंग, कि प्रायोरिटी थिंग तो स्कूल बेस्ड टास्क है जो कल ही सबमिट करना है, पर उस पे हाइपर फोकस इतना लग गया जिस टास्क में इंटरेस्ट है कि अब प्रायोरिटीज नहीं सेट कर पा रहे हैं। अब मैं काम तो कर रही हूँ पर बस जो इंटरेस्ट बेस्ड है उस पे इतना ज्यादा टाइम लगा पा रही हूँ कि मैं दूसरी चीज नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ जो कि प्रायोरिटी बेस्ड है। तो इसको हम टास्क शिफ्टिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का एक पार्ट होता है कि मैं कितनी जल्दी अपना टास्क शिफ्ट कर पा रही हूँ, वो भी डेफिसिट होता है। पर हाइपर फोकस कई बार बहुत यूजफुल भी होता है, अगर उनका इंटरेस्ट ही उनका करियर बन जाए, उनका इंटरेस्ट ही उनके लिए फायदेमंद हो जाए। बट हाँ कि वो कई बार उनका जो कौन यही होते हैं कि प्रायोरिटी बेस्ड नहीं फिर होता, जिसमें जो दिल लगे बस वहीं पर ही हाइपर फोकस हो सकता है। देन द नेक्स्ट वी हैव इज टाइम ब्लाइंडनेस। इसका मतलब होता है कि वो पैसेज ऑफ टाइम कैसे निकल रहा है ना उसके एक्सपीरियंस ही नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे टाइम अलग से पास आउट हो रहा है, एस्टिमेशन ही नहीं लग पाती टाइम की, और फिर लास्ट मिनट इतना ज्यादा अपनी बॉडी को रश में डालना पड़ता है कि ऐसा मतलब एडीएचडी के साथ जो आते हैं लोग ऐसा बोलते हैं कि पता है हमें कि हमने 11 बजे निकलना है, हमने सोचा भी था कि 10 बजे तक हम ये कर लेंगे, 10:20 पे हम अपना कैब बुक कर लेंगे, यहाँ तक हम इतने बजे तक पहुंच गए, फिर भी पता नहीं लग रहा मैं कैसे लेट हो जाता हूँ। कि उनको हमेशा एक लेटनेस ही रहती है, स्कूल में भी लेट हो जाते हैं, वो वर्क पे भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि एस्टिमेशन ही नहीं लग पाती, इतने बजे ये होगा, वो स्कोप ही नहीं होता, अपने टाइम में तो वो लगा के चलते हैं पर वो स्कोप ही नहीं रह पाता, उसकी वजह से बहुत एंड मिनट रशिंग करनी पड़ती है। कि जब वो 2 दिन पहले टास्क कर रहे थे तब उनको लग रहा था एंड मोमेंट में मैं 2 घंटे पे कर लूंगा, पर अब एंड मोमेंट में वो टास्क इतना बड़ा लगता है तो अपनी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट पे डालना पड़ता है रेपिटेटिवली। बट द थिंग इज कि वो कर पाते हैं, तो कई बार ये चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, वो चीज मोटिवेट कर देती है इन नेगेटिव सेंस कि मैंने एंड मोमेंट में तो अचीव कर ही लिया, ठीक है, लोग और प्रेज भी हो गया, बट मुझे पता है कि आई हैड कुड हैव अचीव्ड अ लॉट अगर मैं उसको टाइमली स्टार्ट करता, बट एनी हाउ डिलीवर तो कर दिया ना। अब वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, ब्रेन को बार बार मोटिवेशन मिलती है कि कोई बात नहीं, हम एंड मोमेंट में चीजें कर लेंगे। पर द थिंग इज हम बॉडी को बहुत रश में डाल रहे हैं द एंड मोमेंट, जो हमारी बॉडी के लिए रेपिटेटिवली नहीं अच्छा है, इतना स्ट्रेस में डालना व्हेन वी कुड हैव मैनेज्ड द थिंग्स अर्लियर ओनली। So that is the thing. Then ADHD text. ये for example this is a very common term for using in the financial loss. जैसे हमने बात करी कि आउट ऑफ एडीएचडी सिम्टम अब हम भूल ही गए अपनी कोई सब्सक्रिप्शन कैंसिल करनी, या फिर कहीं से कुछ पैसे का मैनेजमेंट करनी थी, कहीं से मंगवाने थे पैसे, कहीं देने थे, कहीं टाइमली चीजें सबमिट करनी थी जिसपे चार्जेस लग सकते हैं, वो सारी चीजें हम रह ही गई एडीएचडी की वजह से। तो इट्स टेक्स्ट जो साथ आता है एडीएचडी के डिसऑर्डर की वजह से, जो फाइनेंशियल लॉस होता है ड्यू टू आवर सिम्टम्स। देन स्टिमिंग। स्टिमिंग एक रेपिटेटिव मूवमेंट होती है या कोई गेस्चर होता है या फिर कुछ भी ऐसा सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म जो हम बार बार करते हैं। सो ऑल दिस सिम्टम्स मे और मे नॉट बी, बट स्टिमिंग बहुत ज्यादा भी देखी जाती है एडीएचडी में कि बार बार एक ही सॉन्ग को सुनते रहना, एक ही वीडियोस को सुनते रहना, क्योंकि वो बहुत सूद आउट कर रही है, रेपिटेटिव मूवमेंट्स बार बार वो चीज करते रहना। देन इज ADHD पैरालिसिस, दैट इज टास्क इनिशिएशन में दिक्कत होना, कि कांस्टेंट प्रोक्रेस्टिनेशन ही हुई जा रही है, वो दूसरे लोगों को लग रहा है कि दे आर वेरी लेजी, कोई काम ही नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, बट द थिंग इज कि ऐसे लग रहा है कि बॉडी ही उस पे चली गई है, नम हो गया, फ्रोज हो गया, वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रही है। दे नो कि कल असाइनमेंट सबमिट करनी है, कल सब कुछ सबमिट करना है, पर वो इनिशिएट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे लग रहा है कि बॉडी साथ ही नहीं दे रही, काम ही नहीं दे रही, और लोग क्या बोल देते हैं तुम लेजी हो, वो फिर उसका भी जो साथ में सेल्फ वर्थ के साथ डील करना है वो भी साथ में एड अप हो जाती है। तो ये काफी सेकेंडरी सिम्टम्स हैं। देन वी हैव इमोशनल डिसरेगुलेशन, जो हमने पहले भी बात करी है, काफी रिसर्चेस ने दिखाया कि ये भी वन ऑफ द कोर सिम्टम्स हैं कि डिसप्रोपोर्शनल इमोशनल रिएक्शन दिखाना, इसकी वजह से इवन वो मिसडायग्नोज भी हो जाते हैं, कि गर्ल्स को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस्ड हो जाता है इस एक सिम्टम की वजह से। देन रिसर्चर्स हैव शोन दैट दे आर आल्सो वेरी रिजेक्शन सेंसिटिव, कोई भी क्रिटिसिज्म अगर आता है, रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, तो वो काफी इंटेंस इमोशनल पेन में चले जाते हैं। देन स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि अब रात में काम करना अच्छा लगता है तो रात को हम काम कर रहे हैं, सुबह क्योंकि एंड डेडलाइंस पे कर रहे हैं, सुबह इतना रश नहीं मिला और
अगले मॉर्निंग की एग्जाम है, रात को एकदम से रश मिला क्योंकि डेडलाइन आने वाली है, अब मेरे को ऑल नाइटर करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस, बट अब मेरी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगी और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अगले दिन की अटेंटिवनेस में, एनर्जी में और मूड में। अब मेरी क्योंकि नींद भी प्रॉपर्ली पूरी नहीं हुई तो अगले दिन मेरे को बहुत फटीग फील होगा, अब मैं बेहतर से अटेंड भी नहीं कर पाऊंगी, बार बार नींद आती रहेगी और उसकी वजह से मूड भी खराब होगा। देन लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, की छोटी छोटी बातें जो इतना ओवर स्टिमुलेट कर देती हैं उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए जहां पर टर्न टेकिंग का नहीं है या पेशेंस नहीं है कितना ज्यादा वेट करने की उम्मीद, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि वेट करना पड़ेगा रिगार्डलेस, तो उसमें बहुत जल्दी इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना और फिर कई बार वो चीजें डिस्प्लेस हो जानी किसी अपने फैमिली मेंबर पे या किसी लव्ड वन पे, तो उसका बाद में गिल्ट आ जाना, तो साथ में इमोशनल सिम्टम्स भी बहुत एडिड होते हैं। एंड देन वर्किंग मेमोरी गैप्स, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भूल गए, मीटिंग चल रही थी, अब भूल गए, अब या तो फिलअप करने की कोशिश करेंगे खुद ही या फिर बार बार क्लीग से पूछेंगे तो वो भी इमोशनली टेम्परिंग लग सकता है। So emotional self-regulation is also very important when we talk about ADHD. ADHD में बहुत सारी कॉमोर्बिड डिसऑर्डर्स भी होते हैं क्योंकि जो वेंट्रो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लिम्बिक सिस्टम को भी आगे जो ट्यून करता है उसमें भी डेफिसिट्स होने की वजह से काफी बारी कोमोबिड डिसऑर्डर्स भी साथ में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्डहुड में देखा गया या फिर ओडीडी के सिम्टम्स या फिर एनी लर्निंग डिसेबिलिटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एडोलेसेंस में डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, कंडक्ट कंसर्न्स, सब्सटेंस यूज बहुत जल्दी, अडल्टहुड में एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। They can be secondary to ADHD also and they can be their independent also. Secondary क्यों? Secondary का मतलब कि ADHD के सिम्टम्स की वजह से मुझे आगे लो सेल्फ एस्टीम या एंजाइटी रहने स्टार्ट हो गई या अर्ली सब्सटेंस अब्यूज आउट ऑफ इम्पल्सिविटी हुआ, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि मेरी स्लीप पैटर्न नहीं बन पा रही ड्यू टू माय एडीएचडी सिम्टम, दैट वुड बी सेकेंडरी टू इट। बाकी ये प्योरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कि ड्यू टू एनी अदर एपिसोड वो डिप्रेसिव सिम्टम एनी अदर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर स्टार्ट हुआ, so they can run independently also and can be secondary to it also. Some myths in fact, अभी तो काफी अवेयरनेस है, दैट्स गुड, बट पहले बहुत ऐसा होता था कि एडीएचडी अगर बच्चा आराम से नहीं ना बैठ रहा तो सब पेरेंटिंग पे कसूर निकाल देते थे कि यू आर अ बैड पेरेंट, आपने बच्चे को सिखाया नहीं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो आराम से बैठते हैं, फोकस नहीं करता, बात सुनता नहीं है पूरी, पहले आंसर कर देता है, तो सारी जाके कंप्लेंट्स पेरेंट्स के ऊपर आ जाती थी कि ये बैड पेरेंटिंग का कारण है। बट नाउ that's good with awareness, most of us know that it's not a bad parenting thing, it's a neurodevelopmental condition. ऐसा नहीं है कि parenting style ठीक है, थोड़ा बहुत डिसऑर्गेनाइजेशन में एज अ ट्रेड लेवल पे काम कर सकते हैं, बट पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से एडीएचडी हो गया ऐसा नहीं होता। और जो हमने पहले ही डिस्कस करा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे एडीएचडी के सिम्टम्स वो सही हो जाते हैं। एडीएचडी के सिम्टम्स अडल्टहुड आने तक उसकी प्रेजेंटेशंस अलग होती रहती है। पहले ओवर्ट हाइपर एक्टिविटी थी, अब दूसरी होगी कवर्ट होगी, राइट? तो वो रेस्टलेसनेस की भी जो प्रेजेंटेशंस है वो चेंज होती रहती है विद एज। देन ओनली हाइपर एक्टिविटी बॉयज हैव एडीएचडी। जो ज्यादा रेफरेंस है वो हाइपर एक्टिविटी की आता है क्योंकि जब हम एडीएचडी की बात करते हैं ना, कॉमन प्रेजेंटेशन जो सबके माइंड में है वो यही है कि बच्चा इधर उधर भागी जा रहा है। बाकी सारे सिम्टम्स हम बहुत कॉमनली मिस्ड आउट कर देते हैं और तभी तो अभी अडल्ट एडीएचडी के असेसमेंट्स में इतना ज्यादा इंक्रीज नंबर देखा जा रहा है क्योंकि अब जो बाकी सिम्टम्स है एडीएचडी के, जो सेकेंडरी सिम्टम्स है, बाकी सारी चीजें, अब उनको भी विद अवेयरनेस नोटिस किया जा रहा है और रेफरेंस भेजे जा रहे हैं कि इट माइट बी एडीएचडी आल्सो, क्योंकि सही डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए। अगर डायग्नोसिस ही गलत है तो ट्रीटमेंट गलत चलता रहेगा और फिर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। And then the last myth is that it's just a lack of discipline. इनको ऐसे करो, ऐसे समझाओ, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं टीचर्स भी कि बस इनको ऐसे करो, डिसिप्लिन की दिक्कत है, तो कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बट इट्स एक्चुअली एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि बच्चे का भी दिल कर रहा है कि वो पोटेंशियल होके भी उतना मार्क्स ना लेकर आना या अपनी विल पावर से वो चीज वो नहीं उसमें विल पा रही है उसकी वजह से वो हो रहा है, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन से हम पूरा ADHD डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स नॉट द केस। देन टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट्स के लिए अगर आपको लगता है कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ADHD सिम्टम्स, तो आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफरल भेज सकते हैं, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को रेफरल भेज सकते हैं, पीडियाट्रिशियन को रेफरल भेज सकते हैं। बट कोई भी जो भी आपके घर के आसपास है उनको रेफरल जरूर भेजें, सो दैट वो अपनी डिटेल्ड असेसमेंट कर सके। जब हम प्री स्कूल की बात करते हैं, जो ADHD का है ना, अभी तक ऐसा कुछ ब्लड रिपोर्ट नहीं है हमारे पास कि जिसमें ADHD प्रूफ होता है। ADHD की क्लिनिकल इंटरव्यू होती है विद पेरेंट्स, विद इन्फॉर्मेंट्स, और कुछ हम रेटिंग स्केल्स लगाते हैं, टेस्ट्स लगाते हैं, उसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। बच्चे की पूरी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, एकेडमिक हिस्ट्री लेते हैं अगर वो छोटी एज में आता है, उसके साथ प्ले ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कॉर्नर्स का बहुत फेमस टेस्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट ADHD, हम वो इन फॉर्मेट पे लगाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दोनों सेटिंग में होना चाहिए, जो पेरेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं प्लस जो टीचर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एक पेरेंट्स से हम इंटरव्यू करते हैं, फिर हम एक इंटरव्यू उसके टीचर के साथ करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिम्टम्स है वो अक्रॉस द सेटिंग्स हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ घर पे या सिर्फ स्कूल पे, दोनों सेटिंग्स पे एक रिपोर्ट आनी जरूरी है। कई बार अंडर रिपोर्टिंग या ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकती है। तो अगर हमें लगता है कि नहीं ये काफी अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, ओवर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक साइको एजुकेशन सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले उनको एग्जैक्टली समझाया जाए ADHD क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्यों डायग्नोज करना और मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। एडोलेसेंट्स में भी हम सेम करते हैं। जो एडोलेसेंस में हम एक सेल्फ रिपोर्ट वाला भी ऐड कर देते हैं। जैसे बच्चों में तो हम पेरेंट्स एंड टीचर्स की रिपोर्टिंग पे काफी हैवीली और ऑब्जर्वेशंस पे जो हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पर जब एडोलेसेंस और एडल्टहुड की बात करते हैं तो हम सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर भी ऐड कर देते हैं कि उस एडोलेसेंट को क्या लगता है अपने सिम्टम्स के बारे में। और एडल्टहुड में तो हम प्रॉपरली इंटरव्यू ही उनके साथ कर सकते हैं। फिर जब एडोलेसेंस आती है, हमें बाकी चीजों की भी स्क्रीनिंग करनी होती है। और अगर मान लो एडल्टहुड पे भी एक, मतलब जो मैं जिस रूल से चलती हूँ दैट इज कि जब एक सिम्टम्स हमें आ रहे हैं कि पहले सारे स्क्रीन आउट करना कि बाकी किसी की वजह से भी वो सिम्टम्स हो सकते हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, आजकल हमारी जनरेशन लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा हो गया कि हमें अटेंशन सिम्टम्स थोड़े थोड़े आएंगे ही अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि सुबह उठते ही फोन देखना, रात को फोन पे स्क्रॉल करते करते सो जाना, पूरा दिन रील्स चलाना, फेसबुक चलाना, क्विक डोपामिन हमें मिल ही जा रहा है, किसी चीज पे हम अब अटेंशन देना ही भूल गए हैं। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सारा दिन जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तो ये सारी लाइफस्टाइल का डेफिनेटली आपकी कॉग्निटिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैं सारी बुक्स हटा दूं, एक्सरसाइज हटा दूं, सिर्फ आपको फोन दे दूं 1-2 साल के लिए कि बस सारा टाइम रील स्क्रॉल करते रहो और किसी के साथ भी जेन्युइन कॉन्वर्सेशन ना करो, तो आपको भी अटेंशन डेफिसिट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर पहले हर एक चीज रोल आउट करें। और वो कैसे कर सकते हैं, कब से वो सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो लाइफस्टाइल की वजह से है, वैसी मॉडिफिकेशन चलेगी। अगर वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की वजह से है कि पहले नहीं था, आफ्टर डिप्रेसिव सिम्टम, अब जब लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी मेंटल इलनेस रहती है ना, उसमें भी कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट डेफिनेटली जाता है। डिप्रेशन में भी कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं जिसमें ध्यान नहीं लग पाता चीजों पे। जो काम मैं पहले 1 घंटे में कर पाती थी, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो वो सारी चीजें मैं रूल आउट कर रही होती है, स्क्रीन कर रहे होते हैं कि जो सेम सिम्टम है वो कोई और चीज तो नहीं एक्सप्लेन करी, किसी और की चीज से तो नहीं एक्सप्लेन हो रहे। तो वो सारी चीजें हमें रूल आउट करनी होती है। हमें फिर भी लगता है कि स्टिल ADHD का हो सकता है एक पॉसिबल कारण, फिर हमें किसी के साथ इंटरव्यू करना होता है, एडल्ट की डिटेल्ड चाइल्डहुड हिस्ट्री लेनी होती है, 12 साल से पहले वो सिम्टम जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। So this is how we do assessments in real clinical settings. And then फिर उसका जो ट्रीटमेंट चलते हैं, मेडिकेशंस चलती हैं, स्टिमुलेंट्स आर वेल प्रूव्ड, मेडिकेशंस फिजिशियन चलाते हैं, साइकेट्रिस्ट चलाते हैं। देन नॉन फार्माकोलॉजिकली हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं।
अगर बच्चा है तो हम बिहेवियरल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, पेरेंट्स को बिहेवियरल थेरेपी में को थेरेपिस्ट बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल में बात करते हैं, स्कूल में टेक्निक से उनको जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो स्टार्ट करते हैं। देन अडल्ट्स के साथ हम सीबीटी अडेप्टेशन कर सकते हैं। अगर कोई बिलीफ सिस्टम भी है ऐसा, अगर मान ही लिया मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उस बिलीफ को एक्सप्लोर करना है। कोई भी ऐसा नेगेटिव बिलीफ, डिसफंक्शनल बिलीफ जो कि और एग्जैगरेट कर रहा है, उसकी वजह से मैं रूटीन प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही हूँ, तो उस बिलीफ सिस्टम पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एंजाइटी डिप्रेसिव सिम्टम है, उस पर भी काम करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मॉडिफिकेशन हम करते हैं, बिहेवियरल स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं, एनहांसमेंट की, वो सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साइको एजुकेशन। पूरी उम्र वो अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। जब उनको बोलते हैं ना ये पार्ट ऑफ डिसऑर्डर है, आपका सिम्टम नहीं है, तो बहुत उनको रिलीफ मिलता है और वो अपने से दूर करके उस चीज को देख पाते हैं कि ठीक है कि रेगुलेशन करना ऐसा नहीं है कि मेरे में फॉल्ट था, इट वाज नॉट आउट ऑफ द माय थिंग, इट वाज अ सिम्पटम, और उसको ट्रीट भी ये वैसे करना पड़ेगा। फिर जो विलिंगनेस है मैनेजमेंट फॉलो करने की, वो भी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, गिल्ट और सेल्फ वर्थ पे ही इम्पैक्ट होता रहता है और वो चीजों को और वर्सन करते रहते हैं, डाउनवर्ड स्पाइरल में लेके जाते रहते हैं, जिससे एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम भी सेकेंडरी स्टार्ट हो जाते हैं। सो जो ट्रीटमेंट है इन समरी वो बोथ रहता है, डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस है। फार्माकोलॉजिकल भी चलता है जो साइकेट्रिस्ट चलाते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी चलते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चलाते हैं। जैसे हमने बात करी कि कुछ स्ट्रेंथ भी है, हर एक चीज की कुछ स्ट्रेंथ भी है, राइट। इसमें स्ट्रेंथ यही है कि जो हाइपर फोकस है वो कई बार बहुत हेल्पफुल भी फॉलो कर देता है, बहुत सारे आइडियाज बहुत जनरेट करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे हैव अ प्रीटी वेरी गुड रैपिड आइडिया जनरेशन, तो वो भी इनकी स्ट्रेंथ है। हाइपर फोकस को जब यूटिलाइज किया जाए इन अ गुड वे, दैट कैन आल्सो बी वेरी नाइस, कि जिसपे हम जल्दी ड्रेन हो जाएंगे, मे बी 1-2 घंटे काम कर पाएंगे, बट एडीएचडी ब्रेन कैन डू वर्क इन हाइपर फोकस टिल 4-5 आवर्स। देन अगेन जैसे हमने बात करी कि ब्रेन तो प्लास्टिक ही है और न्यूरोप्लास्टिसिटी रहती है, विद इंटरवेंशन स्किल बिल्डिंग में अपनी फंक्शनिंग इंप्रूव बेसिकली कर सकता हूँ। व्हेन आई अंडरस्टैंड कि ठीक है मेरे को रेस्टलेसनेस होती है, उसकी वजह से इम्पल्सिविटी की वजह से कुछ हो जाता है, मैंने साथ में फिडजेट टॉयज रखने स्टार्ट करे, अपनी रेस्टलेसनेस वहां निकालनी स्टार्ट करी। तो ऐसी चीजें उनको हम स्किल बिल्ड कर सकते हैं, उनसे उनकी फंक्शनिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है, काम पे भी, घर पे भी और सेल्फ में भी। बस उनको राइट सपोर्ट चाहिए होती है, जिससे उनकी वो स्किल बिल्डिंग हो सके और वो जर्नी है ना वो स्मूथली उनकी चल सके। सो दैट नॉट अ लिमिट, बट उसको बस समझना पड़ेगा, लड़ना नहीं उसके साथ, बस समझना पड़ेगा कैसे मेरा ब्रेन वर्क करता है, क्या राइट ट्रीटमेंट है मेरे लिए, एंड थिंग्स कैन वर्क वेरी वेल। So if I say a key takeaways that we are going to take from this sessions are that it is a neurodevelopmental disorder and not a discipline problem. देन जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, द बिगेस्ट इज हाइपर एक्टिविटी, वो इनवर्ड हो जाती है विद एज। देन जो सेकेंडरी सिम्टम्स है जो काफी बार मिस आउट हो जाते हैं, दैट इज इमोशनल डिसरेगुलेशन, टाइम ब्लाइंडनेस, स्लीप इश्यूज, वो भी बहुत डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं इन डिसऑर्डर, पर वो मिस आउट हो जाते हैं। गर्ल्स में मास्किंग बहुत रहती है, हाई अचीवर्स में खास करके, वो अपने काम को इतना परफेक्टली करना सीख जाते हैं कि मिस्टेक्स करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर उसमें जो उनके एफर्ट्स लग रहे हैं ना वो बहुत डबल ट्रिपल लगते हैं उसको सस्टेन करने के लिए, तो वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो असेसमेंट डेवलपमेंटली इंपॉर्टेंट है और राइट सपोर्ट के साथ एक बढ़िया वर्केबल स्टोरी बन सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस विद टुडे। Thank you very much, Ekamji, for having done such a, taken such a topic and went so much into detail and also taught us about, basically gave us the awareness that how serious it is a problem and, how delicate a problem it is. Stage by stage, you have explained the subject, and also you have told that it is a neurodevelopmental disorder rather than a disciplinary issue. So we cannot take this casually at all. It has to be taken in all seriousness. And so your talk was very much appropriate for this.
topic, and so looking forward to more such talks from you, and looking forward. So thank you very much for having taken the time out from your busy schedule and coming on our show and talking about this topic. Thank you very much. We'll see you soon in some another show sometime soon. Thank you very much. Sure. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye. Have a good day. Yeah, same to you.